السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر تم صبر کی انتہا پر ہو، ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں ایک جات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی جات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے نہ یوں تو اللہ پاک پر اکثر پیار آتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے کہ انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ پاک کے انداز کلام پر باری نثار ہو جانے کو جی کرتا ہے کہ اللہ پاک خود کو تمہارا بہترین وارث کرتے ہیں، تو کیا اللہ پاک تمہیں یوں ہی لا یعنی خواہشوں کے پیچھے جایا ہونے دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پر ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارے اندر مضبوط کرنے کو آتی ہے تاکہ تم اپنے رب پر یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب کہاں کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ شیطان کے باروں میں سے ایک بار یہ ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی غم، پریشانی، تکلیف یا مشکل وقت میں اللہ پاک سے جڑ جایا کرو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک، تم سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، اس کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پیشمان ہو کر تو دیکھو۔ اللہ پاک تو انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹ کر آؤ اور وہ کب تمہیں معاف کرے۔ بس تمہارا انتظار کر رہا ہے، لوٹ جاؤ اس کی طرف، وہ تو بلاتا ہے، تمہیں دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یقین کرو ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ پاک ہے جو ہمیں اٹھا اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر لوگوں میں ہمیں عزت دیتا ہے، ناشکری کے باوجود بے حساب دیتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا بلکہ دنیا دے دیتا ہے اور پھر غموں میں ڈال کر ہمیں اپنی یاد دیتا ہے۔ جانتے ہو تم، کیونکہ انسان کو حقیقی خوشی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے یہ خوشی چاہیے تھی۔ جب تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے تب پانی تمہیں زیادہ سکون دیتا ہے۔ اس طرح جب تم دنیا کی الجھنوں میں شدید الجھے ہوتے ہو، اس وقت اللہ پاک ہی وہ ٹھنڈک اور سکون بنتا ہے جو تمہاری پیاس کو مٹاتا ہے، تمہیں قابل بناتا ہے، ہر چیز کے قابل، ہر معیار پر پرکھتا ہے تمہیں اور پھر بے حساب عطا بھی کرتا ہے۔ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ پاک پر تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس سے حیا کرو؟ عبادت نہیں کر سکتے تو کفر تو مت کرو، اللہ پاک سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہو، پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو، جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری طرف دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے اقرار چاہتا ہے۔ جو اللہ پاک تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ پاک جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائش کیوں تھی، اس کی آزمائش کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔
तब तक तवक्कुल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है, वो जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा। और याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइश अल्लाह पाक की रजा नहीं तो और क्या है। उसकी रजा के आगे सर झुका दो, सब्र कर लो, यह सोच कर कि जो हो रहा है उसमें बेहतरी है और सब्र करने वालों को वो बहुत खास रखता है। मुझे नहीं पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें कब मिलेगा। हाँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है जो तुमने मांगा है वो तुम्हें हर हाल में मिलेगा। और अगर ना मिला तो भी यकीन रखना अल्लाह पाक तुम्हें खूब ऐसा ही कुछ देगा, लेकिन इस खला को खाली नहीं रहने देगा। आज जो यह तुम्हें तकलीफ और आजमाइश लग रही है, यह दर हकीकत आजमाइश नहीं है, बल्कि तुम्हें वो आने वाले अच्छे दिनों के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब तुम्हारी झोली में खुशियां डाली जाए तो तुम उस रब को न भूल पाओ जिसने तुम्हें तुम्हारे माजी से निकाल कर खूबसूरत मुस्तकबिल दिया। वो सारी खुशियां वापस लौटा दी जो तुम खो बैठे थे। वो चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट जो सजदों में तड़पते तड़पते कहीं खो गई थी। जब तुम अल्लाह पाक से मोहब्बत करने लगते हो तो उसकी कही हर बात का मतलब बाज हो जाता है। उसकी मोहब्बत पर यकीन तो पहले भी होता, लेकिन दिल से भरोसा नहीं होता, इसलिए तो दुख सहना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। अल्लाह पाक कहता है कि सब्र से काम लो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह पाक कहता है कि तुम मुझसे मांग कर तो देखो, मैं ना दूं तो कहना। अल्लाह पाक कहता है कि उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना और उदास मत होना। अल्लाह पाक कहता है कि बस मुझ पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक कहता है कि यह कभी मत सोचना कि मैं तुमसे बेखबर हूँ, मैं सब जानता हूँ और सब देख रहा हूँ। और फिर जब दिल उसकी मोहब्बत से भर जाता है तब सब ठीक होने लगता है, हर कंफ्यूजन दूर हो जाती है, अंदर तक एक सुकून सा उतर जाता है जो अल्फाज से जाहिर नहीं होता, लेकिन जहनी रूहानी सुकून और दिली इत्मीनान सब बयान कर देते हैं। जो कुछ अल्लाह पाक ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर रहेगा और बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि लिखने वाली जात 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करती है तुमसे। बेशक देने में ताखीर हो सकती है, तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने में देरी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें नवाजना भूल जाए। वो नवाजता है और जरूर नवाजेगा, लेकिन वक्त से पहले नहीं। थोड़ा सब्र तो करो, वो तो इतना नवाजता है कि झोलियां भरती जाती हैं और देने वाला नजर भी नहीं आता। आज नहीं तो कल, हम अभी नहीं तो कभी, जल्द नहीं तो देर से सही, इस पल नहीं तो अगले लम्हे, मगर जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है वो तुमसे दूर नहीं की जाएगी। उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकता। फिर डर कैसा, दर्द के खत्म होने पर शक कैसा, बुरे दिनों का सोचकर अच्छे दिनों की उम्मीद ही न करना। क्यों, आजमाइश के बाद अल्लाह पाक खुशी भी देता है और बेहिसाब देता है, इसलिए इत्मीनान रखो, हौसला रखो और सब्र करो। यह सोच कर खुद को परेशान मत करो कि मेरे पास यह नहीं या मुझे अल्लाह पाक ने यह नहीं दिया। दुआ करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह पाक पर सब छोड़ दो। फासला तुम्हारा अल्लाह पाक से है, अल्लाह पाक का तुमसे नहीं। जिसे तुम मीलों की दूरी समझ रहे हो वो तो बस तुम्हारी एक पुकार की बात है। जो आवाज दीवार के उस पार नहीं जा सकती, वो उसे 7 आसमानों के उस पार सुन लेता है। तो फिर क्या है ऐसा जो तुम्हें अब भी उससे मांगने से रोके हुए है? जिसने यह दिल बनाया है उससे बेहतर इस दिल का हाल और कौन जान सकता है। तुम उस पर तवक्कुल रखकर चलो तो सही। तुम्हारी एक दुआ तुम्हारे और मौजज़ों के दरमियान आने वाली हर रुकावट चीर देती है। तो फिर तवक्कुल रखो, वो उन्हें ही वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए रुकावट बने हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीचों बीच रास्ता बना सकता है, वो तुम्हारे लिए भी रास्ता बना देगा। और तुम्हारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, वहाँ से उसके कुन के मामला शुरू होते हैं। ऐसा नहीं सोचते मेरे साथ यह क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपके लिए सबक था।
आपने कुछ सीखना था। अगर आपका दिल टूटा है तो क्या पता इस दिल के टूटने में खैर हो, क्या पता इस दिल के टूटने के बाद ही आपने बहुत कुछ सीखना हो, क्या पता वो दर्द सहने के बाद आपको अल्लाह पाक मिलना हो। अल्लाह पाक को बहुत प्यार है आपसे, उसने तो हर मुश्किल में आपका साथ दिया है, कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। उस जैसा ख्याल तो आपका कोई रखता ही नहीं। जब सब गिरा देती हैं तब वही उठने की हिम्मत देता है और तब आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठती हैं, क्योंकि उठाने वाला जो है ना वो आपका अल्लाह पाक है। यकीन रखें, अगर अल्लाह पाक आपको कोई चीज देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, चाहे मामलात कितने ही कठिन क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। और अगर अल्लाह पाक आपको कोई चीज न देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको वो चीज नहीं दे सकती, चाहे सारी दुनिया उस पर राजी क्यों ना हो, चाहे वो आपको कितना ही आसान क्यों ना लगे। सिर्फ अल्लाह पाक ही हमें थाम सकता है, सहारा देकर उठा सकता है। बंदों के सहारे वाकई बड़े कमजोर हैं, ख्वाह वो उसके मुखलिस बंदे ही क्यों ना हो। जब आप गिर जाते हैं तो वही हर पत्ते तक की हरकत से भी वाकिफ है। रब वो अल अलीम है, आपकी हालत जानता है, वो अल वदूद आपको ढाल देता है। वही अल रहीम आपको गुनाहों के इस दलदल में बहुत अंदर तक डूबने से बचा लेता है। वो अल गफूर आपसे गुनाहों के बोझ हटाकर आपको वकार से चलना सिखाता है। वो जब आपका दिल डूब रहा होता है, वो जब आप उसको खो देने से डर रहे होते हैं, वही अल मोमिन आपको इस खौफ से अमन दे रहा होता है। वो अल अजीज बंदे के ऐब छुपाकर उसे बंदे को मोजिज कर देता है। वो अल मुल्क है बादशाहों का बादशाह, पर इतना नरम दिल, इतना मोहब्बत करने वाला, इतना ख्याल रखने वाला, अपने हकीर गुनहगार बंदों के भी इतने करीब। क्या उस जैसा कोई और भी है? कोई उसका हम नाम, उसका हम मिसाल या उसका हम सिफात अपने तमाम मामला अल्लाह पाक के हवाले कर दो और फिर देखो अल्लाह पाक कैसे उनको हल करेगा। तुम देखोगे अल्लाह पाक कैसे वो हालात बदल देगा जो तुम्हें लगता था कभी नहीं बदल सकते। तुम देखोगे अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं के जवाब कैसे कैसे बेहतरीन अंदाज से देगा। तुम अल्लाह पाक के कुर्ब से अपनी जिंदगी को बेहतरीन होता देखोगे। उदास हो क्यों, दुआ कबूल नहीं हो रही इसलिए? हाँ, कभी कभी कबूलियत का लम्हा होता है तो मुंह से निकलते साथ ही दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन पता है क्या चीज जिसके लिए तुम सजदों में तड़प कर रोते हो, जिसके लिए तुम खुद को बदल देते हो, अल्लाह पाक फिर उस पर थोड़ा इम्तिहान जरूर लेता है ताकि वो तुम्हारी इस पुकार, इस तड़प को देख सके तुम्हारे में कितना सब्र है। और अगर तुम सब्र करना सीख जाओगे, इस बात पर यकीन रखोगे, वो तुम्हें हर लम्हा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। वो तुमसे गाफिल नहीं, बस दुआ अभी कबूल न करके आजमा रहा है। और आजमाइश कभी हमेशा के लिए नहीं होती, और जब कोई उम्मीद ना भी नजर आए फिर भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे हो कि बस वही है जो दे सकता है, उसके अलावा भला और कौन है जो तुम्हारी दुआएं सुन सके, तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी तकलीफ को समझ सके, तुम्हारे इंतजार की अजियत को देख सके, तुम्हारी खामोश आंखों को पढ़ सके, तुम्हारे हलक में फंसे आंसुओं को भी भाप सके। तो फिर अर्ज से आवाज सिर्फ उनकी आएगी। देखो, जब यकीन पुख्ता होगा अपनी दुआओं पर और दुआओं को कबूल करने वाले पर, तो कभी आप शक और सुबह का शिकार न होंगे, कभी आप किसी से सवाल न करें कि हमारी दुआ कबूल कब होगी। अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। देखो, अल्लाह पाक ने चाहा तभी तो हमारे हाथ उसकी बारगाह में उठी हैं। ना तो यकीन भी रखें, अपनी दुआओं पर यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। जो अल्लाह पाक नवाजता है वो आजमाता भी है ताकि खरा खोटा सब अलग कर दे। जब हम दावा करते हैं अल्लाह पाक पर यकीन का, तो हम क्या समझते हैं कि आजमाए नहीं जाएंगे, हमारे यकीन का इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह पाक ने तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया था, जिनका ईमान पुख्ता था और वो काबिल मोमिन थे। जानते हो यह यकीन की आजमाइश कैसे होती है? जब मछली के पेट के मानिंद अंधेरा हमारे चारों तरफ से हमें डरा रहा होता है, जब मौत को इतने करीब से देख रहे होते हो, उस अंधेरे में हमें इतनी वहशत महसूस होती है कि हमें लगता है कि हम उससे कभी निकल नहीं सकते, तब होती है असल में आजमाइश। जब असबाब भी नजर न आ रहे हों, वो जाहिर सब हमारे खिलाफ हों, तब वो अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा खालिस तौहीद का इकरार करता है,
या फिर उसका यकीन असबाब पर है। मेरे बंदे को मैं ज्यादा अजीज हूँ या जिंदगी के आसाइश। मेरा बंदा जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है वो कितना सच्चा है। तब वो रब हमसे बस इतना चाहता है कि हम अपना मामला उसके सुपुर्द कर दें और वो हमारे यकीन को जितवा कर हमारा काम बना दे। अल्लाह पाक फरमाता है, और अपने रब की खातिर सब्र करो। दुआ में एक अलग ही तासीर है, इसलिए तो उसे ऐन इबादत कहा गया है। दुआ करने वाले का दिल नरम कर दिया जाता है। जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारे दिल में यकीन और ईमान का इजाफा किया जाता है, क्योंकि दुआ करने वाले में इखलास होता है। दुआ करना मालिक के सामने बंदे की बेबसी का तज़किरा है। इससे खूबसूरत और क्या है कि जब गुनहगार बंदे को दरवाजे बंद मिलते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो उसे रब का दर खटखटाने पर मजबूर कर देती है। वो है ईमान, रब के वास्ता होने का यकीन। और फिर यही कामिल यकीन तो है जो अल्लाह पाक को पसंद आ जाता है। तलब देकर वो बंदे को दुआ का रास्ता दिखाता है और फिर दुआ के रास्ते से अपने मजीद करीब कर लेता है। फिर दुआओं में इजाफा होने लगता है। दुआओं में जहाँ बस दुनिया को मांगा जाता था, वहाँ बंदा सबसे पहले अल्लाह पाक को मांगने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल की कैफियत को बदला जाता है। जब इंसान रोज अपने खालिक से गुफ्तगू करता है तो उस गुफ्तगू का जवाब उसके कलाम में ढूंढने लगता है। फिर नमाज में सुकून मिलने लगता है। दुनिया के रंग बंदे से उतरने लगते हैं, उस पर अल्लाह पाक की मोहब्बत का रंग चढ़ने लगता है। दुआ में दुनिया भी मांगी जाए तब भी उस इबादत में इतनी बरकत है कि यह हिदायत के रास्ते तक ले जाती है। और जब बंदा अपने रब की तरफ से सिरातुल मुस्तकीम पा लेता है तब उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक के दर से कोई सवाली महरूम नहीं जाता। अल्लाह पाक दिल के हाल जानता है और उसे हमारे बारे में सब मालूम है, हमारी अच्छाई भी और हमारी बुराई भी, कब हम सही थे और कहाँ हमसे गलती हुई। इसलिए अल्लाह पाक के साथ सबसे किया करो, अपने सवाब भी बताया करो और अपने गुनाह भी। अगर तुमने कोई गुनाह भी किया है तो उसके आगे शर्मिंदगी का इजहार करो और माफी मांग लो। दिल से यह डर निकाल दो कि वो तुम्हें जज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जज करना तो इंसानों का काम है। अल्लाह पाक तो सुनने वाला है और अल्लाह पाक उसके बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सब राज की बातें होती हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं होता। क्या हासिल और क्या ला हासिल, किसी चीज को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है और जब वो चीज हासिल ना हो तो आंसू बहाना, शिकवे करना, हर चीज से मुंह फेर लेना और फिर आखिर में अल्लाह पाक के सामने यह कह देना कि जैसा तू चाहे, किसी शख्स से खुद को इस कदर बांध लेना कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। एक तवील मुद्दत तक जिद्दी बच्चों की तरह हक जताना और फिर जब कभी सामने वाला जाने की बात करे तो चुपचाप उसका हाथ छोड़ देना। जब आपका बहुत प्यारा अल्लाह पाक को प्यारा हो जाए और आपका दिल फट रहा हो, फिर अपने आप को बेबस पाना और उस इंसान को वापस ना ला पाना। जब किस्मत साथ न दे और दुआओं से किस्मत बदल जाती है, यह सुनकर हर वक्त दुआएं करते रहना फिर भी तकदीर आपका साथ न दे तो चुप करके वक्त के साथ चलते रहना। इस दुनिया में हासिल ला हासिल कुछ है नहीं। ऊपर वाली जात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह पाक चाहे तो आपको सब मिल सकता है और अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें, फिर जो चीज आपको पसंद है, जिस वक्त आपको चाहिए, आपकी झोली में बगैर डाल दी जाएगी। अल्लाह पाक को कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाता, कोई भी चीज बेमकसद तुम्हारी जिंदगी में नहीं लाता। हर शख्स का आना और जिंदगी से चले जाना खास मकसद से है। कुछ लोगों के जरिए वो हमें शुक्र के आदाब सिखाता है, जिनको देखकर दिल सुकून से भर जाता है और जिंदगी महसूस होने लगती है। ऐसे लोगों को देखकर इंसान उनके होने का शुक्र करता है। ऐसे ही अल्लाह पाक हमें कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाता है जिनसे हमें तकलीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और ऐसे लोगों के जरिए हमें सब्र करना और जब्त करना सिखाता है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। आज जिस लम्हे में हम सांस ले रहे हैं, माजी में हम उस लम्हे में किसी और हाल में थे। बिल्कुल ऐसे ही मुस्तकबिल कहीं और होगा। तुम जैसे हो, जहाँ हो, परफेक्ट हो और जानते हो। तभी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है,
کہ उसने निहायत खूब बनाई, जो चीज भी बनाई उसने बेहद हिसाब चीजें तख्लीक की और हर शय और हर शख्स को अलग हुस्न से नवाजा। तुम्हें देखने के लिए आंख दी और सुनने के लिए कान दिए, तुम्हें दुनिया के हर रंग से नवाजा, सब्र करना सिखाया, जब्त करना सिखाया, तो तुम फिर कैसे उसके इंतखाब या उसकी नक्स किरदा चीजों को बुरा कह सकते हो। उसको अपना हर बंदा, अपनी हर चीज प्यारी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, यकीनन तुम्हारे इस गम का अंजाम आगाज से बेहतर होगा। फिर क्यों थक गए हो, क्यों राह में ही रुक गए हो, क्यों खुद को उन गमों तक ही महदूद कर लिया है, क्यों दुआ नहीं करते हो। अल्लाह पाक ने खुद तुमसे वादा किया है कि अगर साबित कदम रहोगे और अल्लाह पाक पर यकीन रखोगे तो हर कहानी का एक पुरसुकून होगा। इस गम का आगाज जैसे भी हुआ, जिससे भी हुआ, मगर इसका दाम बहुत पुरसुकून होगा। यह जो तूफान तुम्हारे सीने में उठता है, यह भी मध्यम पड़ जाएगा। जो याद तुम्हें सोने नहीं देती, उसे तुम्हारे दिल से मिटा दिया जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें दे दिया जाएगा। जो बेहतर नहीं, उसे बेहतर बना दिया जाएगा। और जो छोड़ गया, उसके बदले तुम्हें उससे भी बेहतर अता कर दिया जाएगा। फिर क्यों शक कर रहे हो अपने रब की रहमत पर? भरोसा रखो, अब जो होगा बहुत बेहतरीन होगा। तुम सब्र की इंतहा पर हो तो सुनो, अल्लाह पाक की मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारी बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया है। वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत पर। बहुत जल्द देखोगे इंसान। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सब्र का सिला इतना खूबसूरत भी हो सकता है कि बदले में सिला देने वाला ही मिल जाए। मुझे तो कभी ऐसा गुमान नहीं हुआ था कि सब कुछ खोकर भी मुझे सब कुछ मिल जाना है। अजीब पहेली है जिंदगी, कभी जीत कर इंसान हार जाता है और कभी हार कर जीत जाता है। मुझे लगता था कि जीत जाने का मतलब अपनी मनपसंद चीज हासिल कर लेना है, मगर मुझे अब समझ आया है कि अपनी मनपसंद चीज हार कर अल्लाह पाक को पा लेना ही असल जीत है। तभी तो हर जीत पुरसुकून नहीं होती और हर हार बेसुकून नहीं होती। यह बात समझने में मुझे बहुत देर लगी कि अल्लाह पाक की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत आजमाइश है। उसकी मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत बस खुद गर्ज है। यहाँ तो सौदाबाजी चलती है, यहाँ तो जज्बात मुँह की कीमत पर बिकते हैं। जिसने ज्यादा बोली लगाई मोहब्बत उसी की हुई। और मुझ जैसे कुछ जिन्हें दुनिया के रंग में ढलना नहीं आता, उनका कासा खाली ही रहता है। और पता है अल्लाह पाक कासा कब खाली कर देता है? जब वो चाहता है कि तुम्हें इसे भरने की लगन उसकी जानिब खींच लाए। और जब मैं यह सोचती हूँ तो मेरा दिल मुझसे राजी हो जाता है, क्योंकि भरी हुई गाफिल झोली से अल्लाह पाक को याद करती हूँ। खाली कासा बहुत बेहतर होता है और जो उसको याद करता है उसको दुनिया याद रखती है। सो आज जिस मकामात पर हूँ वहाँ बस मेरा अल्लाह पाक है। और इससे बड़ी फतह और क्या होगी कि सबको हार कर मैंने अल्लाह पाक को जीत लिया है। अब हार मेरे मुकद्दर का हिस्सा नहीं रही। देने वाले से मोहब्बत कर लो, फिर वो सब मिलेगा जो मिलने वाला नहीं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास बहुत वक्त है। जिंदगी मुश्किल हो या आसान, हर किसी को फिर भी यह प्यारी होती है। दुखों को देखकर जी चाहता है सांस अभी रुक जाए, लेकिन फिर उन चंद लोगों पर जब निगाह पड़ती है जिनकी सांसें हमारी सांसों की वजह से बहाल हैं, तो जिंदगी कुछ आसान लगने लगती है। हम हमेशा उन चीजों में खोए रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती और उन चीजों को भूल जाती हैं जो हमारे पहलू में बैठकर मोहब्बत भरी निगाह से हमें तकती हैं। ये जिंदगी रब का तोहफा है, इसका एक लम्हा जीना सीखो, इसे मुस्कुराकर बसर करना सीखो। जो चला गया उस पर सब्र और जो पास है उस पर शुक्र करना सीखो। सारे पछतावे और बसवसे एक नई निगाह से देखना सीखो। अल्लाह पाक से बात करना सीखो, अल्लाह पाक पर यकीन रखना सीखो, अल्लाह पाक के इंतखाब पर खुश रहना सीखो। कब तक भागते रहोगे उनके पीछे जो तुम्हारे हैं ही नहीं, और कब तक नजर अंदाज करोगे उन्हें जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा हैं। आखिर कभी न कभी तो यह थकन तुम्हें वापस तुम्हारे ठिकाने पर ले जाएगी। फिर तुम मलाल करोगे उस वक्त का जो तुमने लाहासिल की हवस में गुजार दिया। अल्लाह पाक को सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ जानने वाला। जब तुम किसी के साथ कुछ बुरा करते हो या किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो तब वो तुम्हें देखता है, और जब तुम किसी से कोई बात करते हो या जब हजारों बातों के बाद भी कुछ कह नहीं पाते हो, वो तब भी तुम्हें सुनता है। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, कोई तुम्हारी तड़प को देख नहीं सकता, मगर अल्लाह पाक तुम्हें समझता है।
तुम्हें देखता है, तुम्हारी तकलीफ को जानता है, वो उस हंसी से भी वाकिफ है जो तुम ना जाने कितनी सिसकियों के बाद चेहरे पर सजाते हो, और वो उस कुर्बनाक आह से भी वाकिफ है जो तुम ना जाने कितने जब्त के बाद अपने अंदर ही दबा लेते हो। जैसे हालात बदलते हैं वैसे ही मुकद्दर भी बदलता है, लेकिन हर चीज के होने को एक मुकर्रर वक्त दरकार है। तुम्हें पूरा हक है उन ख्वाबों के लिए लड़ने का जिनकी तदबीर तुमने खुद देखी, क्योंकि जब अल्लाह पाक तुम्हारे दिल में किसी का ख्याल पैदा करता है तो वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ, उसे वो चीज देने पर आमादा करो, बार बार उसे पुकारो, बार बार झोली फैलाओ ताकि वो कुन फरमा सके और तुम्हारी फरमाइश पूरी कर सके। मांगने का हक उसने तुम्हें दिया है। जब उसने कुरान पाक में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। अल्लाह पाक ने लिखने का इख्तियार तुम्हें दिया है कि चाहो तो दुआ का तस बढ़ा लो और चाहो तो उदास बैठ जाओ, चाहो तो सजदों को तवील कर दो और चाहो तो वहीं रुक जाओ। हाँ, हर कहानी वैसे मुकम्मल नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, लेकिन वैसे जरूर मुकम्मल होती है जिसमें हमारी बेहतरी होती है। यह सब अल्लाह पाक की तकसीम है और मैंने उसकी तकसीम पर राजी होना सीख लिया है। कुछ हार जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फतह थी, ऐसी फतह जिसके इनाम में अल्लाह पाक मिल गया। हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम वो बातें नहीं जान सकते जो अल्लाह पाक जानता है। निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती और वो सब निगाहों को अहाता किए हुए है, और वो बड़ा बारीक बीन बड़ा बाखबर है। हर चीज का वक्त मुकर्रर है, हर चीज अपने वक्त पर रोनमा होती है। फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, नसीब से कितना ही क्यों ना लड़ें, अल्लाह पाक के मुकर्रर करदा वक्त से पहले कोई वाक्य रोनमा नहीं हो सकता। यही मसला है हमारा कि हम इंतजार ही नहीं करते और बेसुकून हो जाते हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, हर खबर के वाक्य होने का वक्त मुकर्रर है और तुम अनकरीब जान लोगे। याद मदन तो पड़ सकती है लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। तभी बिछड़ने के बाद भी कुछ लोग हमें याद आते हैं। वो जख्म जिसे हम भरा हुआ समझते हैं वो फिर से फकत एक याद से ताजा हो जाता है, और तब हमारा जी चाहता है कि हमें कोई सुनने वाला हो। दुनिया में समझाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिलता। फिर हम अल्लाह पाक की तरफ भागते हैं, क्योंकि दिल जानता है कि वो सुनेगा, वो समझेगा। अल्लाह पाक इन जख्मों को कभी कभार इसलिए ताजा करता है ताकि हम उससे दूर न हो जाएं, ताकि हम उसे भूल न जाएं। और जानते हो, तुम्हारे जख्मों को ताजा तब रखता है जब वो तुमसे राजी हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारा, उसे पुकारना, उससे बात करना, उससे मांगना पसंद आ जाता है। जो तकलीफ दे वक्त गुजर गया वो अब लौट कर नहीं आएगा, और जो गुजर रहा है वो भी अब गुजर जाएगा। यह बस बसे, यह खौफ, यह तन्हाई की कैफियत, यह सिसकियां, बस एक कुर्ब ख्याल और लम्हे से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ अगर वो ना मिला जो तुम्हें चाहिए था? तो क्या हुआ अगर कुछ ख्वाब अधूरे रह गए? तो क्या हुआ अगर कुछ लोग बिछड़ गए? यह जिंदगी है और अल्लाह पाक खूब जानता है तुम कब कब बिखरे और कब कब तुमने किन किन टुकड़ों को सब्र से वापस उठाकर रखा। एक ठोकर पर तो किस्सा खत्म नहीं होता। चलो उठो, देखो जिंदगी पड़ी है। अभी देखो तुम्हें कैसे तुम्हारे अल्लाह पाक ने संभाल लिया है। देखो कैसे कैसे वो तुम्हारे मामला संभालता है, कैसे वो जज्बात की खुददारियों पर पर्दा डालता है। अपने लिए ना किसी और के लिए, तुम बस उसके लिए जियो जिसने तुम्हें यह जिंदगी तोहफे में दी। उसकी मोहब्बत का हक अदा करो। हमेशा ना खुश रह सकते हैं न दुखी। अगर खुशी मुसलसल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रही तो कभी न कभी फिर भी बेशक होने लगती है। इसी तरह अगर गम हमेशा जिंदगी का हिस्सा बना रहे तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। तभी अल्लाह पाक सबके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वो गम जिंदगी में लाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसुकूनी ना हो, ताकि हम जिंदगी से उकता ना जाएं। और दुनिया तो मशक्कत का नाम है, यह आरजी है, मुस्तकिल नहीं। यहाँ बस हम अपने हिस्से का वक्त काटने आए हैं और कुछ बातें सीखने आए हैं, अल्लाह पाक की पहचान करने आए हैं। उसने इंसान को मजबूत तो बहुत बनाया है, लेकिन यह जो सीने में दिल रख दिया, सारा मामला उस पर डाल दिया कि चाहो तो यह पत्थर से भी सख्त और ना चाहो तो शीशे से भी ज्यादा नाजुक। यह चाहे तो लंबा सफर लम्हों में तय कर ले और ना चाहे तो एक कदम पर थका दे। लेकिन जानते हो, थकावट हमेशा दो तरह की होती है। एक वो थकावट जब नींद की जरूरत होती है और दूसरी वो थकावट जब सुकून की जरूरत होती है। नींद की थकावट तो सो लेने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन सुकून की थकावट खत्म होते होते सदियां गुजर जाती है। और यह थकावट बस तब दूर होती है जब इंसान अल्लाह पाक की तरफ वापस पलटता है, जब अल्लाह पाक के
फैसलों पर खुश होना सीख जाता है, जब अल्लाह पाक से मोहब्बत करना सीख जाता है और जब अल्लाह पाक को ढूंढ लेता है। वरना कितना भी सो लो, कितना भी आराम कर लो, कितना कुछ क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर अल्लाह पाक नहीं तो किसी का होना सुकून नहीं देगा। थकावट तो बस अल्लाह पाक ही दूर कर सकता है। ये तकलीफ आरजी है, ये गम बस कुछ वक्त का हिस्सा है। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे यह जिंदगी खत्म हो जाएगी, जैसे फिर कभी मुस्कुरा नहीं पाओगे, जैसे यह गम उम्र भर रूह का हिस्सा रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, कुछ गम भूलते नहीं हैं, मगर वक्त और हालात उन गमों के बदलने इतनी खुशियां दे देते हैं कि इंसान को माझी याद तो आता है मगर तकलीफ नहीं होती। यही कायनात की हकीकत है, यही अल्लाह पाक की मोहब्बत है कि वो हमारे हाफिज में बस फिर उन्हीं चीजों को रखता है जिनसे हमें तकलीफ नहीं मिलती या जिनको याद करके हम गम में मुब्तला नहीं होते। फिर अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम उन चीजों को छोड़ सके जिनसे हमें बस तकलीफ मिलती है, जो सिवाय कुर्ब के कुछ भी नहीं। वो ख्यालात से वाकिफ हैं, वो चाहे तो हर सकता ख्याल दिल से निकाल दे और वो चाहे तो तुम्हें इसी ख्याल में फंसा दे। अल्लाह पाक ने कुरान में बड़े अफसोस के साथ फरमाया है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, यानी अगर उसे कुछ ना मिले तब भी वो सिकवा करता है और अगर उससे सब कुछ मिल जाए तब भी वो उसकी कदरदानी नहीं करता। हम बहुत बदनसीब लोग हैं। हम खुश होने के लिए बड़े बड़े लम्हों का इंतजार करते हैं और इस दौरान हम खुशियों के कितने छोटे छोटे लम्हे गवा देते हैं, हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। कितना मुश्किल है यह काम। क्या आपको वो नेमत नहीं नजर आती जो अल्लाह पाक ने आपको आपकी औकात से ज्यादा दे रखी है? पता है नेमत पाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उन नेमतों को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल। तो आप अपनी नेमतों को संभाल लें, आप शुक्र की आदत डाल लें। दुआ उसको भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होते। मोजिज़े यकीन के धागे पर टिके होती हैं। सुकून से लेकर बेबसी तक के सारे इख्तियार सिर्फ अल्लाह पाक के हैं। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ नसीब बदल नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि जो छिन गया है वो अब वापस मिल नहीं सकता। जो चीज अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिखी है, अगर 7 जमीनों और 7 आसमानों में रहने वाली हर शय एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तब भी तुम्हारी और उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। और जिसको अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए नहीं लिखा उसको दुआ के अलावा कायनात की कोई भी चीज तुम तक नहीं ला सकती। जैसे हालात बदलती हैं वैसे ही मुकद्दर बदलता है, लेकिन हर चीज के होने को एक मुकर्रर वक्त दरकार है। तुम्हें पूरा हक है उन ख्वाबों के लिए लड़ने का जिनकी तदबीर तुमने देखी है, क्योंकि जब अल्लाह पाक तुम्हारे दिल में किसी का ख्याल पैदा करता है तो वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ, उसे वो चीज देने पर आमादा करो, बार बार झोली फैलाओ, बार बार उसे पुकारो ताकि अल्लाह पाक कुन फरमा सके और तुम्हारी फरमाइश पूरी कर सके। मांगने का हक उसने तुम्हें दिया है जब उसने कुरान पाक में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। अल्लाह पाक ने मुकद्दर लिखने का इख्तियार तुम्हें दिया है कि चाहो तो दुआ का तस बढ़ा लो और चाहो तो मायूस बैठ जाओ। मत भूलो कि तुम्हारा काम सिर्फ इल्तिजा करना है। तदबीर तो अल्लाह पाक खुद निकालता है। जब वो किसी काम के होने का सोच लेता है तो वो उस काम के मुकम्मल होने का इशारा कर देता है। बस फिर जो मुमकिन हो और जो नामुमकिन हो सब हो जाता है। यह भी तो मुमकिन है कि तुमने मायूस होकर जो दुआ मांगना छोड़ दी है वही तुम्हारी कबूलियत की दुआ हो। वो चीज जो तुम्हें शिद्दत से चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसके लिए हाथ उठाकर फरियाद करते रहोगे। क्या पता तुम्हारे नसीब के उस सफे पर अल्लाह पाक ने यही लिखा हो। तो अगर तुम उस चीज के लिए लड़ना ही छोड़ दोगे, दुआ के लिए झोली फैलाना ही बंद कर दोगे, तो वो चीज कैसे तुम्हें मिलेगी? नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।